Okay, so good morning. As I said, this is the continuation of our rigid pavement design. In the previous lecture, we have learned what are the different stresses that will develop in the rigid pavement slab. Here, rigid pavement slab means what? The bearing force. The top Yes, force, ma'am. as I said, pavement is made up of different layers. Okay, so in case of rigid pavement, if the in case of pavement, if the top course is made up of cement concrete slab, then it is called rigid pavement. Okay, so within the slab, many stresses will be developed. Okay, and the reason for the development of the stress was what? Mainly due to wheel load. That means due to wheel load. Okay, loading conditions, and another is due to temperature variation. Okay, so that we have covered. And what are the critical combination of those stresses? We have covered that also. Okay, now the next topic is what? We have to understand what are the types of the joint in a rigid pavement. First we will see what are the types of the joint in the rigid pavement. Okay, then among this there are two design. Okay, we have to design two Yes, ma'am. types of the joint. One is the expansion joint and another is your contraction joint. Okay, mainly these two types of the joints we need to design, or they will ask you in the question to design this type of the joint. Either it may be expansion or contraction. Okay, so before going into this design procedure, let us see what are the types of the joints that we need to understand, or we will see in a cement concrete slab of a rigid pavement. Yes, Okay, ma'am. so first see, this is suppose the top view. Suppose this is a stretch of a road. Okay, this is two-lane road. See, this is for this direction traffic and this lane is for opposite direction traffic. Okay, we have cut a section of the roadway which is two-lane. Okay, and we are seeing it from the top. ठीक है, मतलब ऊपर से हम देख रहे हैं. जैसे सपोज यू आर स्टैंडिंग इन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग एंड इन फ्रंट ऑफ योर बिल्डिंग देयर इज वन rigid pavement. Okay, and it is two lane rigid pavement. You are looking from the top how it looks, so it will look like this. Okay, see here these lines are nothing but the joints. Why joints? I have already said that cement concrete slab or the in the rigid pavement, the rigid pavement is constructed by what? Laying one or more than one or laying different slabs. Okay, one after the another. See this slab, this is first slab, then second, then third, then fourth. Okay, see these Yes, are ma'am. the slabs which are joined together to form a roadway. Okay, it is, but these are what? These are single slab. Okay, so as I said, this rigid pavement is what? It is a discontinuous structure. Okay, whereas Yes, ma'am. our flexible pavement is what? It was the continuous structure. There was no such joints. Okay, so it was a continuous structure. But here we cannot construct that slab of certain length. Suppose your roadway is of 100 kilometers, so we cannot draw, or sorry, we cannot construct a slab whose length is 100 kilometers and just we will lay that slab in the roadway. Okay, we can't do that. That what we do? We have to construct small slabs and we will join them together. So whenever there is a joint, means what? Whenever there is a gap. Okay, when one slab ends, another slab starts, what happens? There will be gap. Okay, and those gaps are what? These are discontinuous structures. So those gaps are not basically, these are what? These are not filled by the concrete. Okay, so it will be filled by some other materials, but it is not filled by the concrete. So these are what? These are the weak zone, right? So these are the weak portion, and these are known as the joints, where two slabs meet together. Okay, that portion is the joint. See here, these two slab meets in this position. This is one kind of joint. Here, these two slab meet together. So here they are forming one kind of joint. Okay. Now please tell me, this is what? This is your longitudinal joint. Means what? The joint which is parallel to the direction of the traffic. See, your Yes, ma'am. car is moving in this way, and your joint is also parallel to the direction of the traffic, along the direction of the traffic, this joint, right? So this is what? This is actually longitudinal joint. Okay, and Yes, transverse joint, as I said, this is what? Perpendicular. See, your direction of the traffic is here, whereas the direction of this joint is perpendicular to the direction of the traffic. Okay, so these are known as the transverse joint. Okay, so uh, then and transverse joint
there may be different types of transverse joint. Okay, we will see that only. Among this, within this transverse joint, two most, or we can say three most important type of the joint is what? Expansion joint, contraction joint, and construction joint. Okay, these are the types of the transverse joints. See, expansion joint, contraction joint, construction joint. Okay, as the name suggests, why we have to cut this slab after certain length? Why? Okay, what is the purpose of these joints? Mainly, see, the name suggests expansion joint means what? Your slab, it will expand in which weather? Hot weather, or in winter, or in summer? When your concrete slab expands? Summer. Summer, yes. So if there is no gap between these two slabs, okay, we have to provide some little bit of gap between these two slabs. Okay, expansion means what? This slab will move this direction and this slab will move this direction. If there is no gap here, then what happens? There will be some development of stresses. Okay, then what happens? Because of this stress development, some cracks will be developed within the slabs. So in order to release those stresses, what we are doing? We are cutting this slab throughout its depth. Okay, so that it can easily release the stresses, as well as it can easily expand without generating any other stress. Okay, so reason of expansion joint is what? To allow the slab to expand. See, suppose this is the top view. Okay, as I said, you are looking from the top of the slab. See, these joints, these are gap. There is certain gap. Okay, and these gaps are less compared to this one. These have less gaps. Okay, this. Yes. Both are the joints only. This is also transverse, means what? This is the direction of the traffic. Okay, and these joints are what? These joints are perpendicular to the traffic. See, this is one joint perpendicular to the traffic. Okay, this is second joint perpendicular traffic. This is third joint, fourth, like that. Okay, so all these are the transverse joint only. But among this joint is the expansion joint. Why? Because see, it is what? The depth is, the gap of the joint is much more compared to the gap of these types of the joints. Okay, see here, ये वाला क्या है? थोड़ा ज़्यादा space है इन लोग के joint के बीच में, right? So it is expansion joint, and this other joint in between the two expansion joints are what? These are the contraction joints. Okay, see, contraction joints. Yes, okay, so what we have to do? We have to design these joints only. Now here, what does it mean? Design of joint means what? We have to design the spacing of the joints. As I said, this and this are what? These are the contraction joint. So the spacing means what? Interval between the two consecutive joint is known as spacing. So the spacing between one joint and the consecutive subsequent another joint is denoted by LC. Okay, the spacing between the contraction joint is denoted by LC. Okay, whereas the spacing between this joint, expansion joint, मतलब देखो, this is your expansion joint. Okay, this is your expansion joint, this is another expansion joint, and this is third expansion joint. Okay, so the spacing between the expansion joint means which length? From here to here. Okay, so this is the spacing between the two expansion joints. So this is your LE. Okay, whereas the spacing between the contraction joint, so this is your contraction joint, this is your contraction joint, this is your contraction joint. So the spacing between the contraction joint is denoted by L suffix E. Okay, so we need to L suffix C. So we need to determine this LE and LC. Okay, so what are the values of LC and LE, and what is the value of LC that we have to design in case of design of rigid pavement joint. ओके, मतलब इसका वैल्यू निकालना है कि कितना होगा, यही हमको चाहिए. ओके, सो नाउ if you see this joint from
this view. Okay, ये वाला तो क्या था, this one is looking, you are looking from the top view. Okay, now you will see this pavement from side of the road. Okay, side, road के side से तुम देखोगे तो कैसा दिखेगा, it will look like this. See, suppose this is the wheel load which is moving in this direction, and ये वाला joint देखो कौन सा है, ये वाला joint is this one, this joint ये वाला है, and this joint मतलब कि ये जो सॉरी ये जो जॉइंट है ये वाला ये है. ओके, ये जो सेकेंड वाला जॉइंट है ये वाला ये है. ओके, साइड से अगर देखोगे तो ठीक है, ये तो ऊपर से हम लोग देख रहे थे, एंड साइड से ये वाला. ठीक है, whereas दिस जॉइंट्स, ये जो जॉइंट है ये वाला ब्लू ब्लू करके अगर हम देख रहे हैं टॉप से, ठीक है, तो साइड से वी आर लुकिंग दिस वन, दिस दिस दिस, मतलब ये. Okay, now tell me what is the difference between two types of the joint. ये expansion red अगर है और ये वाला blue अगर तुम्हारा contraction joint है, तो दोनों के बीच में difference क्या दिखाई दे रहा है तुमको? Anyone? ये difference, what you can see? What is the difference between this joint and this joint? Anyone? Please tell me what is this difference? क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? देखो ये वाला भी जॉइंट है, ये वाला भी जॉइंट है, लेकिन ये वाला है कॉन्ट्रैक्शन, ये वाला है एक्सपेंशन. डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है? डिफरेंस इज व्हाट? द डेप्थ ऑफ कट. ठीक है, कि कितना डेप्थ, अगर ये स्लैब का, ये अगर स्लैब का थिकनेस h है, ठीक है, तो एक्सपेंशन जॉइंट का डेप्थ ऑफ कट कितना है? इट इज कट थ्रू आउट इट्स डेप्थ, मतलब थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द स्लैब वी हैव कट दिस एक्सपेंशन जॉइंट. ओके, मतलब कि यहाँ पे पूरा एक्सपेंशन जॉइंट का ये जो थिकनेस क्या है तुम्हारा, इट इज फुल डेप्थ, मतलब पूरा एकदम स्लैब को काट दिया एकदम नीचे तक. ठीक है, तो जहां पे काटा है वहां पे गैप हो गया है, एंड दैट गैप इज द एक्सपेंशन जॉइंट. Okay, but here in case of contraction joint कहाँ तक काटा है? See this much height, सिर्फ ये हाइट तक काटा है. देखो ये हाइट तक ही काटा है. ओके, ऑन एवरेज अगर हम देखेंगे, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही काटा है, राइट. whereas एक्सपेंशन जॉइंट कहाँ से कहाँ तक काटा है? एक्सपेंशन जॉइंट थ्रू आउट इट्स डेप्थ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट. whereas कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट सिर्फ ये वाला डेप्थ तक काटा है, बाकी क्या है? इंटरलॉक है, ये वाला पूरा इंटरलॉक्ड है. स्लैब इज नॉट कट थ्रू आउट इट्स डेप्थ इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, बट यहाँ पे देखो पूरा कट है. ठीक है, सो दिस डेप्थ ऑफ कट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इज व्हाट? दैट इज 25 to 30% ऑफ द, मतलब देखो एच अगर ये फुल डेप्थ है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा कम होगा, राइट. तो वो बोला है कितना है? दैट इज दिस डेप्थ ऑफ कट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इज योर 25 to 30%. Okay, so the depth of cut is what? 25 to 30% of h. ठीक है, whereas this is 100% of h इसको काटा गया है. Okay, so clear है ये वाला depth of cut? Okay. मैम ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो है वो रियलिटी में दिखेगा नहीं ना? रियलिटी में दिखेगा नहीं, हाँ दिखेगा नहीं. वेरी गुड. हाँ, ठीक है, इंटरलॉक्ड किया है, लेकिन ये वाला जॉइंट तुमको दिखेगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बहुत कुछ डालना पड़ता है, सीलर डालना पड़ता है, फिलर डालना पड़ता है, फिर सीलर डालना पड़ता है, और ये सब भी यहाँ पे जहाँ पे तुम्हारा देखो एक्सपेंशन जॉइंट है, वी नीड टू प्रोवाइड सम रेनफोर्समेंट. हम बोले थे ये रेनफोर्समेंट है, डबल बार इसको बोलते हैं. ओके, यस मैम. सो अब देखो, तो ये वाला तो हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट कि ऐसा होता है. ओके, तो ये मेनली एक्सपेंशन जॉइंट इज व्हाट? टू प्रोवाइड, मतलब टू अलाउ एक्सपेंशन ऑफ द स्लैब. ठीक है, तो फिर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का काम क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि देखो एक्सपेंशन हो रहा है तब भी एक स्ट्रेस हो रहा है. यहाँ पे अगर गैप नहीं होता तो यहाँ से भी फोर्स जा रहा है, यहाँ से भी फोर्स आ रहा है. ठीक है, देन व्हाट हैपेंस? दोनों के बीच में आके यहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाएगा. एक इधर से भी गुस्सा मार रहा है, उधर से भी मुक्का मार रहा है, देन दोनों के बीच में क्या हो जा रहा है? स्ट्रेस हो जा रहा है, फॉर विच योर क्या बोलते हैं यहाँ पे फेलियर, क्रैक्स डेवलप हो जाता है. ओके, सिमिलरली इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट मेनली क्यों देते हैं? देखो कि
यहाँ से भी ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये स्लैब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ओके, मतलब इट विल सी दिस इज द होल स्लैब, प्लीज रिमेम्बर दिस इज द होल स्लैब, ओके, मतलब यहाँ पे एक स्लैब खत्म स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है, so that is जहाँ Yes. पे खत्म हो रहा है that is expansion joint। अब स्लैब के विद इन द स्लैब हम लोग कुछ क्रैक्स खुद से काट दे रहे हैं, ठीक है, व्हाई, देखो अब कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो क्या है, ये वाला स्लैब आउटवर्ड से इनर की तरफ स्क्वीज करने का कोशिश करेगा और इस तरफ से भी ये स्क्वीज करने का कोशिश करेगा, ठीक है, फ्रॉम आउट मतलब इनवर्ड की तरफ फोर्स जाने का कोशिश कर रहा है। देन व्हाट हैपन, बिकॉज ऑफ विच विद इन द स्लैब इटसेल्फ सम स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड, ओके, तो वो Yes, जो ma'am. स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ये वाला बेसिकली कौन सा स्ट्रेस है, एनीवन, ये स्ट्रेस कौन सा है, ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द स्लैब एंड द एटमॉस्फेयर, राइट, Yes, ma'am. सो दिस इज योर फ्रिक्शनल स्ट्रेस जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे, ओके, मतलब Yes, स्लैब और एटमॉस्फेयर के बीच के जो टेम्परेचर वेरिएशन होगा उसकी वजह से जो अंदर में स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज द फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ओके, सो तो देखो ये इस तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा है एंड इट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस आल्सो, तो क्या हो रहा है यहाँ पे विद इन द स्लैब इटसेल्फ सम स्ट्रेस विल बी डेवलप, ओके, तो अगर तुम यहाँ से पहले ही एक कट मार दोगे बीच बीच में, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस, मतलब कि यहाँ पे भी गैप्स है, राइट, सो गैप्स होने की वजह से ये भी थोड़ा रिलीज करेगा, मतलब इट विल आल्सो ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, ये भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, स्ट्रेस उतना डेवलप नहीं होगा, मतलब कि तुम्हारा एक ऐसा है कि तुमको बहुत मतलब बचपन से ही इतना झमेला देखे हो, इतना टेंशन लिए हो कि अगर लाइफ में कोई भी टेंशन आ जाता है तो क्या हो जाता है, तुमको वो कुछ ठीक ठाक ही लगता है, राइट, उतना ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लगता है। वैसे ही यहाँ पे भी हम पहले से ही कुछ क्रैक्स डेवलप कर दे रहे हैं, जिससे अगर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है तो क्रैक्स जनरेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सम गैप्स वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड, तो ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, स्क्वीज हो रहा है तो ये यहाँ से भी स्क्वीज हो रहा है, यहाँ से भी स्क्वीज हो रहा है, ओके, सो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ओके, अब तो यहाँ पे हमको डिजाइन करने के लिए बोला क्या गया है, ये एक्सपांशन जॉइंट का स्पेसिंग, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ओके, ये है LE और तुम्हारा ये है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का स्पेसिंग विच इज LC, ठीक है, अभी आज का टॉपिक क्या है, एक्सपांशन जॉइंट का निकालना है स्पेसिंग, ठीक है, विच इज योर LE डिनोट करना है, ओके, तो यहाँ पे थोड़ा एक तुम लोग का सॉरी तुम लोग का एक कॉन्सेप्ट आएगा विच इज यूज इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, मतलब एक्सपांशन होने से जो ओरिजिनल लेंथ अगर डेल्टा एक्सपांशन हुआ, ओरिजिनल लेंथ L है, देन व्हाट इज द एक्सपांशन, ठीक है, वो हम बाद में आएंगे। नाउ सो इफ वी डू नॉट प्रोवाइड लाइक दिस जॉइंट, देखो यहाँ पे जो विथ जॉइंट्स है, ठीक है, अगर हम जॉइंट्स नहीं प्रोवाइड करते वेदर इट इज एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, देन व्हाट हैपेंस, क्रैक्स विल बी डेवलप, ऐसा देखो, ऐसा कहीं से भी क्रैक्स स्टार्ट हो जाएगा, ओके, कहीं से भी तुम्हारा क्रैक्स डेवलप हो जाएगा, सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दोस, ये सब मतलब ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑलरेडी क्रैक्स दे रहे हैं, ओके, सो वी आर डूइंग, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग दे देंगे, ओके, सो दिस इज द मेन फंडा ऑफ योर जॉइंट्स। नाउ लेट अस गो टू द डिजाइन, ओके, अच्छा नहीं अच्छे से डिजाइन नहीं करने से भी देखो, अगर ये स्पेसिंग सही नहीं है, ठीक है, अगर ये सही से डिजाइन नहीं किया है, देन इंटरनल क्रैक्स फिर से डेवलप हो ही सकता है, ओके, सो ये भी हमको देखना है। नाउ पर्पस इज व्हाट, टू अलाउ एक्सपांशन ऑफ द स्लैब, ठीक है, किस वजह से होता है, व्हाट इज द रीजन ये एक्सपांशन हो रहा है, राइज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर, मतलब कि तुम जिस टाइम में कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, एक तो कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर रहता है उस टाइम, जिस टाइम पे तुम कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, सपोज उसका T1 है टेम्परेचर, ओके, अब नाउ हॉटेस्ट मंथ, अब कंस्ट्रक्शन हो गया, तुम स्लैब मतलब ओपन कर दिया, वहां से गाड़ी जा रहा है, ठीक है, नाउ कम्स द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है, जहां पे समर सीजन के टाइम में, एकदम पीक समर सीजन में, तो क्या हो जाता है, ऑब्वियसली योर टेम्परेचर विल बी लिटिल बिट हायर, या बहुत हायर होता है या कुछ ज्यादा ही होता है, राइट, कंपेयर टू द कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर, ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस, जब तुम ले कर रहे थे पेवमेंट में स्लैब ले कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर, नाउ यू हैव कंस्ट्रक्टेड द पेवमेंट, गाड़ी जा रहा है, अब
तुम्हारा हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर आ रहा है, तो तब का टेम्परेचर में ऑब्वियसली देयर विल बी सम डिफरेंस. सपोज दैट इज T2, construction temperature is T1, then the rise in temperature is what? T2 minus T1. Now because of this rise in temperature, हम क्या बोले थे, टेम्परेचर ज्यादा होने से एक्सपांसन होता है. ओके, तुम्हारा सपोज ये अगर साइड व्यू से अगर हम देख रहे हैं, वही वाला डायग्राम जो फर्स्ट दिखाए थे, साइड व्यू से देख रहे थे, ठीक है, ये एक स्लैब हो गया, ये वाला एक स्लैब हो गया, ठीक है. सपोज द लेंथ ऑफ द स्लैब इज व्हाट, दिस इज, हम क्या बोले थे, जहां पे एक स्लैब खत्म होता है, स्लैब दूसरा स्लैब स्टार्ट होता है, दैट इज द स्पेसिंग ऑफ द एक्सपांसन जॉइंट. मतलब यहाँ पे गैप्स है, मतलब ये वाला गैप इज एक्सपांसन जॉइंट, ये वाला गैप भी एक्सपांसन जॉइंट है. सो द लेंथ इज व्हाट, लेंथ इज द मतलब स्पेसिंग ऑफ द एक्सपांसन जॉइंट, और वी कैन से दिस इज द लेंथ ऑफ द स्लैब. ठीक है, जिसको हम LE से डिनोट किया है. सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ द स्लैब. ओके, ये है डेल्टा, मतलब गैप कितना रखना है दोनों स्लैब के बीच में. ओके, विच इज द जॉइंट विथ, इसको जॉइंट विथ भी बोलते हैं. ओके, विच इज डिनोटेड बाय ट्रायंगुलर डेल्टा. ओके, तो ये वाला है कि नॉर्मल टेम्परेचर में तुमने डिजाइन कर दिया कि इतना थिकनेस देना है यहाँ पे, ठीक है, इसका लेंथ इतना मेंटेन करना है कि मतलब LE डिस्टेंस के बाद दूसरा एक्सपांसन जॉइंट देना है, मतलब लेंथ ऑफ द स्लैब कितना रखना है, LE रखना है. ओके, ये हम लोग डिजाइन करके कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं. ओके, अब क्या हो रहा है, देखो हॉटेस्ट मंथ में ये वाला स्लैब एक्सपैंड करेगा, राइट. तो इस तरफ भी एक्सपैंड कर रहा है, इस तरफ भी एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है. तो सिमिलरली इसका पास वाला स्लैब भी इधर से एक्सपैंड होगा, राइट, इसका दूसरा पास वाला स्लैब भी इधर से एक्सपैंड होगा, ठीक है. सो ये जो एक्सपैंड किया है, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस स्लैब ड्यूरिंग द हॉटेस्ट मंथ. ओके, ये डायग्राम थोड़ा देख लो. ये है गैप हो गया, मतलब जब एक्सपेंशन नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है तो एक्सपेंशन क्यों होगा, नहीं होगा. तो इतना थिकनेस है, गैप इतना है दोनों के बीच में. ओके, अब तुम्हारा क्या हो रहा है, समर के सीजन में यहाँ से भी एक्सपैंड हो रहा है, यहाँ से भी एक्सपैंड हो रहा है, तो ये वाला डेप्थ क्या हो जाएगा, ये वाला विड्थ थोड़ा कम हो जाएगा. ओके, सो ये ऐसा वाला सिचुएशन है. अब आते हैं कि assumptions और we can say recommendations. IRC ने कुछ पॉइंट्स रिकमेंड किया है फॉर द डिजाइन ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट. ओके, वो रिकमेंडेशन क्या है कि उससे हम लोग को डिजाइन का फॉर्मूला भी निकल आएगा कि एक्सपेंशन जॉइंट का फॉर्मूला क्या है. वी कैन फॉलो दिस रिकमेंडेशन एंड वी कैन इजीली डिराइव आल्सो. ठीक है, तो सी व्हाट इज द रिकमेंडेशन. फर्स्ट रिकमेंडेशन इज व्हाट, गैप ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट. मतलब ये जो डेल्टा है, मतलब ये जो गैप है एक जॉइंट के बीच का, जो भी मतलब ये गैप, दिस गैप, ओके, ये वाला गैप. ओके, सपोज तो बोला है कि द गैप ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट शुड बी डिजाइन सच दैट इवन आफ्टर द फुल एक्सपेंशन ऑफ स्लैब, ठीक है, 50% ऑफ द गैप शुड बी मेंटेन. मतलब अगर ये तुम्हारा 100 सेंटीमीटर, अगर हम बोलेंगे, ठीक है, सपोज दिस इज 100 mm गैप, ठीक है, अगर ये 100 mm गैप है तो आफ्टर एक्सपेंशन कहाँ पे पहुंचा, बिफोर एक्सपेंशन ये स्लैब का जगह कहाँ पे था, पोजीशन ऑफ द स्लैब वाज दिस वन. ओके, यस मैम. आफ्टर एक्सपेंशन पोजीशन ऑफ स्लैब इज ये वाला, ठीक है. सेम ये वाला साइड वाला का स्लैब का पोजीशन पहले यहाँ पे था, आफ्टर एक्सपेंशन ये यहाँ पे पहुंच गया, मतलब इस तरफ जाएगा तो एक्सपेंशन मतलब दे विल मूव आउटवर्ड, राइट. तो यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है. तो आफ्टर एक्सपेंशन गैप कहाँ पे बचा, कौन सा गैप इज दी आफ्टर एक्सपेंशन, ये वाला बीच का ये है, ठीक है, दिस इज द गैप. ओके, बिफोर एक्सपेंशन गैप कौन सा है, ये वाला, दिस इज व्हाट, दिस इज बिफोर, this is also before expansion, so the gap between the two is ये वाला which is delta. okay, after expansion कौन सा है, ये वाला छोटू सा डेल्टा में. यस हाँ, मैम. तो ये जो गैप बोला है कितना होना चाहिए, इवन आफ्टर फुल एक्सपेंशन, ये वाला छोटू सा गैप, अगर ये डेल्टा 1 है और ये वाला डेल्टा 2 है, then what is the relationship between 1 and 2? 50%. Yes, मतलब 50, yes. डेल्टा 2 will be your डेल्टा 1 का हाफ. ओके, सो ये है रिलेशन. ओके, सो दिस गैप इज द 50%, ये मेंटेन करना ही है इवन आफ्टर फुल एक्सपेंशन. ठीक है, तो ये अगर इतना गैप बच रहा है आफ्टर फुल एक्सपेंशन,
ठीक है, तो ये यहाँ से कितना एक्सपैंड किया, ये यहाँ से कितना एक्सपैंड किया, दोनों का एक्सपेंशन कितना होगा, ये प्लस ये, देन सेम होगा मैम, डेल्टा बाई 4 प्लस डेल्टा बाई 4 डेल्टा बाई 2। हाँ, डेल्टा बाई 2, मतलब ये गैप प्लस, मतलब ये एक्सपांशन, ये वाला स्लैब का एक्सपांशन प्लस ये वाला स्लैब का एक्सपांशन क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई 2 होना चाहिए, राइट। तो डेल्टा बाई 2 मतलब ये वाला क्या है, दिस इज ईच, अगर इक्वली एक्सपेंशन हो रहा है तो डेल्टा बाई 2 विच इज डेल्टा बाई 4, एंड दिस वन इज ऑल्सो डेल्टा बाई 4, ठीक है। मतलब अब ये वाला स्लैब अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये इस तरफ एक्सपांशन कितना किया, इस तरफ एक्सपांशन किया डेल्टा बाई 4, ठीक है। अब ये वाला इस तरफ कितना एक्सपांशन करेगा, सेम अमाउंट ही करेगा, तो यहाँ पे भी कितना एक्सपांशन कर रहा है, डेल्टा बाई 4 ही एक्सपांड कर रहा है, मतलब इस तरफ भी डेल्टा बाई 4 है, उस तरफ भी डेल्टा बाई 4 है, तो टोटल एक्सपांशन कितना है ये वाला स्लैब का, 8, डेल्टा बाई 2। हाँ, सी डेल्टा बाई 4 इस तरफ मूव किया, डेल्टा बाई 4 इस तरफ मूव किया, सो टोटल एक्सपांशन ऑफ दिस स्लैब इज डेल्टा बाई 4 प्लस डेल्टा बाई 4 विच इज डेल्टा बाई 2, ठीक है। इफ वी डिनोट दिस टोटल एक्सपांशन बाय ये वाला छोटू सा डेल्टा, ठीक है, कड़वी वाला डेल्टा से अगर हम लोग डिनोट करेंगे वो वाला टोटल एक्सपांशन को, देन दिस डेल्टा विल बी ट्रायंगुलर डेल्टा बाई 2, तो ये वाला डिराइव हो गया फर्स्ट मेथड से, ओके। फर्स्ट रिकमेंडेशन से हम लोगों ने किया है कि तुम्हारा एक्सपांशन ऑफ द स्लैब शुड बी, जो भी गैप होगा, ठीक है, उसका हाफ होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द टोटल एक्सपांशन ऑफ द स्लैब, ये हो गया, ओके। नाउ यूजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर्मूला, ओके, एक स्लैब, सपोज कोई भी एक स्लैब या रॉड है, ठीक है, अब टेम्परेचर राइज हो रहा है, विच इज डेल्टा टी राइज हो रहा है टेम्परेचर, ओके, एंड इसका इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ इज सपोज एल, ठीक है, ठीक है। आफ्टर एक्सपांशन सपोज इतना एक्सपांड किया विथ द राइज इन टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, ठीक है, इसका इतना एक्सपांशन हुआ है, ओके, विच इज योर डेल्टा सपोज, ओके, एंड द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन इज डिनोटेड बाय सपोज अल्फा, then what is the relationship between these three things? तो कितना एक्सपेंशन हुआ, फॉर्मूला याद है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड इज सपोज एल, ठीक है, टेम्परेचर राइज हुआ है कितना, इतना डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, किस रेट में, अल्फा डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड इस रेट में हो रहा है, और आफ्टर एक्सपांशन कितना बढ़ गया इसका लेंथ, कितना मतलब डेल्टा इंक्रीज हुआ, दिस मच इंक्रीज हुआ, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन द लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू दिस फॉर्मूला, कुछ याद आ रहा है, एल अल्फा डेल्टा टी, यस, ये वाला फॉर्मूला आ रहा है ना, देखो, यस मैम, डेल्टा टी, ओके, सी दिस वाला फॉर्मूला, सी, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एल के जगह पर क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द रॉड तो नहीं है, ये स्लैब है, सो लेंथ ऑफ द स्लैब इज व्हाट, ओरिजिनल लेंथ इज एल ई, तो यहाँ पे एल ई होगा, अल्फा को अल्फा ही लिखेंगे, और डेल्टा टी को हम कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं, ओके। नाउ व्हाट इज दिस ये वाला कर्वी वाला डेल्टा को हम लोग बोले थे, इट इज डेल्टा बाई 2, ये क्या है, ये है तुम्हारा एलोंगेशन, ये है तुम्हारा ये जो विड्थ है, गैप का विड्थ, ओके, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। सो यहाँ पे डेल्टा बाई 2 हम लोग लिख लेंगे, सो एल ई विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑल दिस थिंग, ओके, है तुम्हारा डेल्टा बाई 2 अल्फा टी, वेयर अल्फा टी क्या, सॉरी, टी इज व्हाट, टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर है माइनस कंस्ट्रक्शन का जो टेम्परेचर है, ओके, दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर है ये वाला फंडा, सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, ये नोट डाउन कर सकते हो, वेयर डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा इज, ये क्या है, डेल्टा गैप है, गैप विथ है एक्सपांशन जॉइंट का, ना कि इंक्रीमेंट वो है, डेल्टा ये एक्सपेंशन जॉइंट का गैप विथ, ठीक है, ठीक है। और अल्फा इज थर्मल कोफिशिएंट इफ नॉट गिवन, एज्यूम इट एज 10 into 10 to the power minusing, alpha is what, this is the thermal coefficient of तुम्हारा वो concrete, ठीक है, 10 to the power minus 6 unit is per degree centigrade, okay, and T is what, T2 minus T1, okay, I think this is clear, okay. अब
दूसरा रिकमेंडेशंस क्या क्या है? ओके, फिलर मटेरियल, एज आई सेड वी हैव टू फिल द गैप। अगर तुम गैप को ऐसे खुला रख दोगे देन व्हाट विल हैपन? इफ these gaps are not filled with other materials, ठीक है, या फिलर मटेरियल्स, ये गैप जो है अगर इसको हम खुला रख देंगे देन व्हाट विल हैपन? ये गैप्स जो है इसको हम फिल नहीं करके ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या दिक्कत आ सकता है? कोई और चीज से उसमें फिल हो सकता है, या फिर कोई रास्ते पे कुछ चल रहा है तो वो फिल हो जाएगा उसमें। उससे भी हो सकता है, लेकिन मेन क्या है हम लोग का? मेन आवर पेवमेंट शुड बी क्या बोलते हैं, इट शुड बी रेजिस्टेंस टू द वाटर प्रूफ होना चाहिए हम लोग का पेवमेंट, राइट? क्यों? बिकॉज इसके नीचे जो भी लेयर्स है, इसका बेस जो है एकदम फाउंडेशन जो है वो है सबग्रेड, विच इज नथिंग बट द कॉम्पैक्टेड नेचुरल सॉइल को कॉम्पैक्ट करके हम लोगों ने एक लेयर बिठा दिया है एज अ फाउंडेशन, विच इज द सबग्रेड। अगर बाई चांस ड्यूरिंग रेनी सीजन यहाँ पे गैप है तो क्या होगा? पानी पेनिट्रेट करेगा, ठीक है, पेनिट्रेट करके यहाँ पे जो सॉइल से क्या हो जाएगा? दैट सॉइल विल गेट टू लूजन, राइट? वो लूज होना स्टार्ट करेगा, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है वो लॉस हो जाएगा, राइट? नाउ उसका स्ट्रेंथ ही नहीं है तो क्या है, यहाँ पे अगर व्हील आ जाएगा, व्हील लोड आ जाएगा तो इसका कोई रेजिस्ट करने का शक्ति नहीं है, देन व्हाट हैपेंस? तुम्हारा यहाँ पे पूरा फेलियर हो जाएगा, जहां जहाँ पे जॉइंट्स है पूरा क्रैक्स, राइट? वो हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर मड पंपिंग, मतलब ये जो लूज पार्टिकल्स है, बार बार गाड़ी जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो क्या यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हो रहा है, एक इस तरफ जाएगा, एक बार इस तरफ जाएगा, ठीक है, करते करते ये क्या हो रहा है? ये वाला लूज हो जाएगा, जिससे तुम्हारा जो भी नीचे का मटेरियल से ऊपर आना स्टार्ट करेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मड पंपिंग। अब ये भी हो जाएगा तो यहाँ पे सपोर्ट ही खत्म होगा, सपोर्ट ही नहीं रहेगा, सब तो ऊपर आ रहा है, राइट? तो सपोर्ट नहीं है तो मतलब इट विल क्रैक, तो अल्टीमेटली फेल हो जाएगा, ठीक है? तो इस फॉर दैट रीजन ओनली वी नीड टू फिल दिस मटेरियल। अब ऐसे मटेरियल से फिल करना है कि ये मेनली क्या है, ये वाला क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा मटेरियल अगर देंगे कि बहुत हार्ड टाइप का मटेरियल दे रहे हैं, मतलब वो कंप्रेस ही नहीं होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब एक्सपांशन की वजह से तो ये स्क्वीज करना स्टार्ट करेगा ना, इसका अंदर का मटेरियल तो स्क्वीज करना चाहिए, सो दैट इट विल अलाउ द स्लैब टू एक्सपैंड, मतलब अलाउड द स्लैब टू स्क्वीज, राइट? मतलब इस तरह से भी स्क्वीज हो रहा है स्लैब, इस तरह से भी स्क्वीज हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, राइट? तो इतना अगर यहाँ पे ऐसा हम मटेरियल डालेंगे कि सख्त टाइप का है, जो कंप्रेस, उसका कंप्रेसिबिलिटी 0% है, देन क्या हो जाएगा? यहाँ पे तुम्हारा फिर से वही क्रैक्स ही डेवलप हो जाएगा, राइट? वो स्ट्रेस रिलीज नहीं हो पा रहा है और ये एक्सपांशन भी नहीं हो पा रहा है, राइट? सो we have to put such material जिसका कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी है, मतलब वो कंप्रेस हो जाए, मतलब यहाँ से अगर एक्सपैंड हो रहा है तो वो थोड़ा कंप्रेशन हो जाए, राइट? मतलब वो स्क्वीज हो जाए, ऐसा मटेरियल देना है। तो गया है कैसा मटेरियल देना है? So we need to provide filler material which has 50% compressibility, क्योंकि हमको बोला था हमें कितना गैप रखना है, यहाँ पे 50% गैप रखना है, मतलब ये मटेरियल अगर पूरा फुल कर दिया है यहाँ से फिलर मटेरियल से, तो ये कितना परसेंट स्क्वीज हो सकता है? 50% स्क्वीज होगा और 50% गैप मेंटेन करेगा, ओके? सो यही तो दिया है, देखो, इट शुड बी 50% कंप्रेसिबिलिटी, अलाउ फुल एक्सपांशन ऑफ द स्लैब, एग्जांपल फाइबर बोर्ड, कॉक, ये सब है तुम्हारा फिलर मटेरियल, ओके? अनदर रिकमेंडेशन क्या है तुम्हारा? वो जो गैप है डेल्टा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2.5 सेंटीमीटर, ओके? ये क्वेश्चंस में आ सकता है इन योर एमसीक्यूज, ओके? व्हाट इज द मैक्सिमम गैप विड्थ ऑफ एन एक्सपांशन जॉइंट, व्हिच इज 2.5 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। एंड अनदर एमसीक्यू आता है क्या? व्हाट इज द स्पेसिंग ऑफ द, या मैक्सिमम कितना लेंथ ऑफ द स्लैब हम दे सकते हैं, वही है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एक्सपांशन जॉइंट, ठीक है? तो दैट इज 140 मीटर, मतलब एक स्लैब जहां पे खत्म हो रहा है, दूसरा स्लैब जहां पे स्टार्ट हो रहा है, सपोज ऐसा है, ठीक है, और ये है सपोज एक स्लैब, सेकेंड स्लैब, थर्ड स्लैब, ठीक है? सो दिस डिस्टेंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 140, ठीक है? सो 140 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर तुम्हारा डिजाइन करते करते सपोज 50 मीटर आया है,
LE 50 मीटर आया है, मतलब ये विद इन द लिमिट है, ओके सेफ है, तुम वो डिजाइन कर सकते हो। अगर सपोज तुम्हारा 150 मीटर आया है, कैलकुलेट करके डिजाइन 150 आया है, तो हम लोग मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 140 मीटर ही दे सकते हैं। सो इन दैट केस वी हैव टू टेक वैल्यू ऑफ LE एज 150, ओके सॉरी 140 मीटर, ओके क्लियर? यस मैम, यस मैम। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेट अस सी वन प्रॉब्लम, ओके देखो ये एक प्रॉब्लम है। इफ width of the expansion joint is 2 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये कौन सा डिनोशन है, इसका नोटेशन क्या है, एक्सपांशन जॉइंट का width डेल्टा डेल्टा delta, right? And the temperature at the time of construction of the slab is 20 degree centigrade, that is T1, ठीक है। देन फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन, मतलब एक्सपांशन जॉइंट के बीच का स्पेसिंग मतलब LE निकालो, ठीक Yes, है। ma'am. फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 45, मतलब मैक्सिमम कब होता है, समर के टाइम में होता है, सो दैट इज T2, ओके। टेक अल्फा दे दिया है, अगर नहीं देता तो ये 10 × 10⁻6 पकड़ लेना है, ओके। सो अल्फा इज गिवन, ठीक है। सो कैन वी कैलकुलेट LE, सब कुछ तो दिया है, यस मैम। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो तो देखो कितना आ रहा है। डेल्टा इज योर Yes, ma'am. कितना 2 सेंटीमीटर, राइट, लिख लो, सी डेल्टा इज 2 सेंटीमीटर, T1 इज 20 डिग्री, T2 इज 45, देन T इज व्हाट, T2 minus T1 which is 25 डिग्री सेंटीग्रेड, निकालो तो कितना आएगा। पहले हमको पहले सेंटीमीटर में बोलो, कितना सेंटीमीटर आएगा LE का वैल्यू, 4.8 × 10⁻⁴ क्या यूनिट, दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। LE निकालो, डेल्टा इज 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या बिठाएगा, 2 सेंटीमीटर बिठाओ, ठीक है। अल्फा इज 12 × 10⁻10, T इज 45 - 20, LE कितना आ रहा है, सेंटीमीटर में बिठाओगे तो ये सेंटीमीटर में ही आएगा, अगर मीटर में बिठाओगे तो मीटर में ही आएगा। कितना आएगा बोलो, 333 बहुत सारा है। 333 क्या आ रहा है बोलो, सही है आंसर। 333 कितना क्या है, यूनिट क्या है, Centimeter. सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो कितना आएगा, देखो 33.33 मीटर, ये गलत है, ओके, ये वाला छोड़ो, ये वाला देखो 33.33 मीटर, ओके। एक्चुअली यहाँ पे हमने सेंटीमीटर को मीटर में अगर डायरेक्ट कर दोगे तो इतना आएगा, विच इज लेस देन 140 मीटर, हेंस इट इज ओके सेफ। सो ये वाला है तुम्हारा LE का कैलकुलेशंस, क्लियर? यस मैम। क्लियर है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक छोटा सा और एक देते हैं हम, ठीक है, रुको, यहाँ पे कहाँ पे था मेरा, ओके, सी व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पे, अगर वो होता तो क्या हो जाता 2.5, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा रुको कौन सा है, ये MCQ है ना? हाँ देखो ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा ये 12, Yes, ma'am. ठीक है। The width of expansion joint gap is 2.5 centimeter in a cement concrete pavement. The spacing between expansion joint for the maximum rise in temperature of 25 degree centigrade is, इन चारों में से कौन सा होगा? Assume coefficient of thermal expansion of concrete as 10 × 10⁻6. Tell me the answer. मैम इसमें तो एक ही टेम्परेचर है। ये देखो क्वेश्चन पढ़ो, यही तो दिया, इसलिए तो दिया हम, क्या दिया है, द स्पेसिंग बिटवीन एक्सपांशन जॉइंट फॉर अ मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। वो वाला क्या था, मैक्सिमम टेम्परेचर एक है और कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर एक है, राइट। तुम्हारा टेम्परेचर कंस्ट्रक्शन में था 20 और मैक्सिमम टेम्परेचर है 45। व्हाट वाज द राइज इन टेम्परेचर देन, 45 - 20 था, कितना टेम्परेचर राइज किया, T इज व्हाट, T2 - T1 इज नथिंग बट द राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। सो ये वाला क्या है बोलो, व्हाट इज दिस 25 डिग्री सेंटीग्रेड, किस चीज का वैल्यू है ये,
में फाइनल T कैपिटल होगा। टी मैम, कैपिटल टी। Yes, capital Yes, T. ma'am. This itself is T2 minus T1. ठीक है, वहाँ पे T2 अलग Yes, दिया, ma'am. T1 दिया, यहाँ पे पूरा बोल ही दिया rise in temperature इतना है. So this is T2 minus T1, which is capital T. Simple. Yes, नहीं बोलो आंसर बोलो, मीटर में दिया है. मैं ऑप्शन Five. 2। ऑप्शन 2 50 मीटर में। 50 मीटर, मीटर. 50 मीटर। वेरी गुड. हाँ यही आंसर है. ओके वेरी गुड. Yes, ma'am. तो ऐसा वाला आता है. ओके 5 मार्क्स में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी दे सकता है. ओके तो एक्सपेंशन जॉइंट का इतना ही है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट. ओके ओके मैम। ओके देन थैंक यू. आज के लिए इतना ही है. Okay. Let me take Okay. the attendance. थैंक यू मैम। ओके थैंक यू. सब आ सकते हो. ओके मैं अटेंडेंस हो गया? हाँ यही अटेंडेंस है. ठीक है, ओके मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम.